हेलो गाइस, वी आर डिस्कसिंग इन कोर्स इंजीनियरिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू ऑप्टिमाइजर्स। ये देखें, ये एक डायग्राम जो है आपके सामने बनी हुई है कि जिसमें हम अगर स्टेप बाय स्टेप यानी छोटे छोटे स्टेप्स में अगर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएं तो इवेंचुअली हम यहाँ पे बॉटम पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये बेसिकली इसका मीनिंग है। ये आगे देखते हैं इसको हम। If you remember anything from calculus, it might have something to do with the optimization. Finding the best numerical solution to a given problem is an important part of many branches in mathematics. Okay? And machine learning is no exception. Optimizers combined with their cousin, the loss function, are the key pieces that enable machine learning to work for your data. अच्छा जी, आगे देखते हैं इसमें हम। ये ऑप्टिमाइजेशन की को थोड़ा सा मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव में थोड़ा सा हम बता रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस वी tweak and change the parameter weights of our model to try and minimize the loss function and make our predictions as correct as possible. But how exactly do you do that? How do you change the parameters of your model? How much and when? This is where the optimizers come in. They tie together the loss function and model parameters by updating the model in response to the output of the loss function. यानी वो मॉडल को ऑप्टिमाइज कर रहे होंगे, वेट्स को चेंज कर रहे होंगे, कंटिन्यूसली चेंज कर रहे होंगे यहाँ तक कि वो जो लॉस फंक्शन है वो मिनिमाइज हो जाए। ठीक है, तो इन सिंपलर टर्म्स ऑप्टिमाइजर्स शेप एंड मॉडल मोल्ड योर मॉडल इनटू इट्स मोस्ट एक्यूरेट पॉसिबल फॉर्म बाय फजिंग विद द वेट्स को चेंज करके। ठीक है, द लॉस फंक्शन इज द गाइड टू टेलिंग द ऑप्टिमाइजर व्हेन इट्स मूविंग इन द राइट और रॉन्ग डायरेक्शन। For useful mental model, you can think of a hiker trying to get down a mountain with a blindfold on. यानी वो उसने कुछ पट्टी शट्टी बांधी हुई आंखों पे। It is impossible to know which direction to go in, but there is one thing she can know: if she is going down, making progress, or going up, losing progress. Eventually, if she keeps taking steps that lead her downwards, she will reach the base. Similarly, it's impossible to know that your model's weights should be right from the start, but with some trial and error based on the loss function, you can end up getting eventually. अच्छा जी, ये देखें, ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम है ये। इसको हम आगे जाके बाकायदा इसके प्रॉब्लम्स करेंगे, अभी जस्ट ये इंट्रो है। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट, द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑप्टिमाइजर्स। क्या कहा इसने? द ग्रैंड डैडी ऑफ ऑप्टिमाइजर, यानी है सब सारे का प्यो। तो ये इसमें देखें, कॉस्ट फंक्शन है। कॉस्ट फंक्शन में आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स लेते 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 फाइनली यू मिनिमाइज इट। ठीक है, सो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये एक्स एक्सिस पे वेट शो कर रहा है, वाई एक्सिस पे कॉस्ट शो कर रहा है, और छोटे छोटे स्टेप्स के अंदर, ठीक है, जिसको लर्निंग रेट कहते हैं। आगे हम देखते हैं इसको। So, any discussion about the optimizer needs to begin with the most popular one, and it's called gradient descent. This algorithm is used across all types of machine learning and other math problems to optimize. It's fast, it's robust and flexible. Fast, robust and flexible. अच्छा, calculate what a small change in each individual weight would you do to the loss function, that is which direction should the hiker walk in. Adjust each individual weight based on its gradient, taking small step in the determined direction. Keep doing steps 1 and 2 until the loss function gets as low as possible. Okay. The tricky part of this algorithm and the optimizers in general is understanding gradients, which represent what a small change in a weight or parameter would do to the loss function. Gradients are partial derivatives. Partial derivative क्या होता है? एक तो डेरिवेटिव होता है ना, सिंपल डेरिवेटिव ले लिया। पार्शियल डेरिवेटिव तब आता है जब आपके पास फंक्शन में दो या तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो। मतलब आपका फंक्शन है एफ है, वो एफ ब्रैकेट में एक्स कॉमा वाई है, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन होगा इट विल बी द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है तो वाई को कांस्टेंट आप कंसीडर करेंगे, और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेना है तो एक्स को कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। सही है, तो अच्छा जी, back to the calculus again, and are a measure of change. They connect the loss function and the weights that they tell us what specific operation we should do to our weights. Add 5, subtract 0.07 or anything else to lower the output of the loss function, and they will make our model more accurate. अच्छा जी, अच्छा जी, you might experience during optimization is getting stuck on local minima. ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि लोकल और ग्लोबल मिनिमा और मैक्सिमा क्या होता है। ग्लोबल या एक्सट्रीमा, जिसको एक्सट्रीमा भी कहते हैं, वो एक सेट के अंदर आप देखते हैं उसको, सेट की वो बाउंड्रीज पे भी आ सकता है, यानी वो दोनों बाउंड्रीज के ऊपर कहीं भी हो सकता है।
ठीक है, या वो बाउंड्रीज के ऊपर होगा या वहां पे होगा जहां पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। क्या होगा? फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी आपको मैंने लास्ट टाइम कराया था। सेकंड डेरिवेटिव अगर तो पॉजिटिव आ जाए तो वो मिनिमा पॉइंट है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो वो मैक्सिमा पॉइंट है। ठीक है। अच्छा जी, when dealing with high dimensional data sets, loss of variables, it's possible you will find an area where it seems like we have reached the lowest possible value for your loss function, but it's really just a local minima। कई मतलब एक मिनिमम पे पहुंच के कहते हैं वाह वी हैव रीच्ड, आ गया भाई, वो नो भाई, वो लोकल मिनिमा है, अभी आप मजीद चलें इसमें। ठीक है, तो इन द वेन ऑफ द हाइकरग्नोलॉजी दिस इज लाइक फाइंडिंग अ स्मॉल वैली विद इन द माउंटेन यू आर क्लाइंबिंग डाउन, इट अपीयर्स दैट यू हैव रीच्ड द बॉटम, getting out of valley requires counterintuitively climbing, but you haven't। to avoid getting stuck in local minima we make sure we use the upper proper learning rate। learning rate जो है प्रॉपर होना चाहिए इसमें। learning rate क्या होता है कि changing our weights too fast by adding or subtracting too much, that is taking steps that are too large, can hinder our ability to minimize the loss function। we don't want to make a jump so large that we skip ओवर दी ऑप्टिमल वैल्यू फॉर अ गिवन वेट। अगर आप बहुत लंबी लंबी जंप में मार रहे हैं तो वो आप स्किप कर सकते हैं उस पॉइंट को। ठीक है, तो वो फिर गलत हो जाएगा आपका। तो मेक श्योर दैट दिस डजंट हैपन वी यूज अ वेरिएबल कॉल्ड द लर्निंग रेट। This thing is just a very small number, usually something like 0.001 that we multiply the gradients by to scale them. This ensures that any changes we make to our weights are pretty small। In math talk, taking steps that are too large can mean that the algorithm will never converge to an optimum। Convergence, converge का मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को रीच करना। जैसे कंट्रोल सिस्टम में हम देखें, हम कहते हैं एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी। एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी क्या होता है कि जीरो को रीच करना एज टाइम टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है, और वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी? बाउंडेड इन बाउंडेड आउटपुट। बाउंडेड इनपुट देंगे तो आगे आपको बाउंडेड आउटपुट मिलेगी, यानी कोई फाइनाइट वैल्यू को कन्वर्ज कर रहा है, जीरो को नहीं कर रहा। जीरो को कर रहा है तो वो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल कहते हैं उसको हम। At the same time, we don't want to take the steps that are too small because we might never end up with the right values for our weights। In math talk, steps that are too small might lead to our optimizer converging on a local minima for the loss function, but not the absolute minima। For a simple summary, just remember that learning rate ensures that we change our weights at the right place and not making any changes that are too big or too small। ठीक है, तो ये देखें, ये लर्निंग रेट है। लर्निंग रेट आपका जो है वो ज़्यादा है, या आपका लर्निंग रेट जो है वो स्मॉल है। ठीक है, आपने ऑप्टिमम रखना है, ना बहुत छोटा रखना है कि आपका स्लो टाइम इतना लग जाए आप, और ना बहुत ज़्यादा आपने रखना है कि जंप के चक्कर में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मिस कर जाएं। अच्छा जी, अब कुछ हम देखते हैं ऑप्टिमाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स। ऑप्टिमाइजेशन करेक्टरिस्टिक्स, अच्छा जी, ये देखें मैंने आपको जी, this page introduces optimization and different types of optimization problem। It is not specific to Analytica Optimizer and applies to any kind of optimization or solver software। It explains the basic elements of an optimization, including decision variables, objective and constraints, the different types of optimization problems, linear programs, quadratic programs, and non-linear programs। ठीक है, आइडेंटिफाइंग कंटिन्यूस डिस्क्रीट और मिक्स्ड वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे आपका जो पीआईडी कंट्रोल है दैट इज़ अ कंटिन्यूस कंट्रोल, लेकिन जो स्लाइडिंग मोड कंट्रोल है उसमें ये वेरिएबल स्ट्रक्चर कंट्रोल होता है। उसमें क्या होता है कि लीनियर के साथ साथ उसमें डिस्क्रीट कंट्रोल भी आ जाता है, क्योंकि उसमें ऑन ऑफ फंक्शन, सिग्नम फंक्शन जिसको कहते हैं, वो उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा नहीं हो सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड अदर कांस्टेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, पार्ट्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या होते हैं जी? द फर्स्ट स्टेप इन परफॉर्मिंग एन ऑप्टिमाइजेशन इज टू फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम अप्रोप्रिएटली। An optimization problem is defined by four parts: a set of decision variables, an objective function, देखें set of decision variables, ठीक है, x1 x2 x3 जो भी है, ठीक है, an objective function f of x1 x2 x3, bounds on the decision variables and constants। the formulation looks like this: decision variables given x, उसके बाद ये वेक्टर है x1 x2 xn, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? मिनिमाइज f of x सच दैट, ये बाउंड्स आ गए, सच दैट क्या है कि एक्स आई इज लेस देन इक्वल टू एल बी आई लोअर बाउंड, और लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर बाउंड, और लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, यानी उसके बाउंड्स हैं, यानी लिमिट्स हैं, नीचे वाली लिमिट और ऊपर वाली लिमिट।
upper bound and lower bound I from 1 to up to n, और constraints क्या है जी, g1 of x लेस देन इक्वल टू b1, g2 इतना है, ये इतनी आपके पास ईंटें हैं, इतनी आपके पास मैन आवर्स हैं, इतने आपके पास ये चीज़ें हैं, इसमें रहते हुए, ठीक है. Decision variables, a vector one-dimensional array of the decision variables whose values we can change to find an optimal solution. ठीक है. A solution is a set of values assigned to these decision variables. Objective is a function of the decision variables. It gives a single number evaluating a solution which the optimizer tries to minimize or maximize, whichever you specify in the formulation. For a linear program, the objective is defined by a set of coefficients or weights that apply to the decision variables. For a nonlinear program, the objective can be any expression or variables that depends on the decision variables. अच्छा, फिर आते हैं बाउंड्स. Arrange xi less than equal to lbi greater than equal to lba and less than equal to ubi I from 1 to n on the decision variables, defining that values are allowed. These bounds define the set of possible solutions called the search space. Each decision variable can have a lower bound and an upper bound if not specified. The lower and upper bounds are inf plus inf and minus inf. There are no bounds. अच्छा जी. Constraints. The constraints, for example, g1 less than equal to b1 are the bounds on the functions of the decision variables. They define which solutions are feasible. Types of optimization and optimization problem may be linear, quadratic, or other. Non-linear. Analytica can automatically determine the type of. For a linear program LP, the objective must be a linear function of the decision variables. For a quadratic program, the objective function is a quadratic function and the constraints must be a linear functions of the decision variables. For a quadratically constrained program, यानी QCP, quadratically constrained program, the objective and constraints must all be linear or quadratic functions of decision variables. The problem is non-linear. The problem is a non-linear program if the objective or any of the constraints are non-quadratic in any of the decision variables. अच्छा जी, linear and convex quadratic optimization problems are often relatively fast to compute, but generally non-linear optimization is a computationally difficult problem. Many of the most famous and notoriously difficult computation problems can be cast as optimization programs, from the traveling salesman to the solution of the Fermat's last theorem. It is therefore unreasonable to expect the optimizer engine to succeed on any possible non-linear program which can formulate. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. There are often several ways to formulate the same problem. अच्छा, अब इसकी थोड़ा सा हम आगे देखते हैं जनाब. The general description of optimization problems applies to all the problem types. अच्छा, इसमें देखिए parts of a linear program LPP, linear जो program है LP. A linear optimization problem has the following standard formulation. मिनिमाइज, किसको मिनिमाइज करें? कॉस्ट फंक्शन c1 x1 प्लस c2 x2. ठीक है, c1 क्या है? कॉस्ट ऑफ x1 पर यूनिट कॉस्ट है, बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट है, उसको x1 से ज़रब देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी. तो c1 x1 प्लस c2 x2 प्लस 1 प्लस cn xn सच दैट s डॉट t डॉट a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस 1 1n x1 लेस देन इक्वल टू b1. इसी तरीके से आगे जो लीनियर इक्वेशन है, कॉन्स्टेंट्स आ गई आपकी. Or in the standard form, all the decision variables are real valued and unconstrained, ranging from minus infinity to plus infinity. Linear programs generally solve quickly, although large models can be computationally complex. Solutions to the linear problems always represent a global maximum or minimum. This means that you always be sure finding the absolute optimal solution. अच्छा जी, क्वाड्रेटिक प्रोग्राम जो होता है QP, उसको आप कैसे लिखेंगे? मिनिमाइज C डॉट x प्लस x ट्रांसपोज QX. ठीक है, a quadratic problem has the following standard formulation. Minimize C vector dot x vector plus x transpose QX, that is the objective function, और उसके बाद a1 x less than equal to b1 up to so on am dot x less than equal to bm. The objective and constraint left hand sides are written here in matrix notation. The constraints are the same as they were in the linear programming formulation and differ here only by the fact that they appear here in the matrix notation. The term c dot x vector is the linear part of the objective function and x transpose qx is the quadratic part of the objective function, okay, which is specifically by n matrix. ठीक है, denotes the vector transpose of the decision variables. अच्छा, parts of a quadratically constrained
program. The general form for a quadratically constrained quadratic program is minimize c dot x plus x transpose qx, ठीक है, such that ax a1 x1 a1 vector dot x1 vector plus x transpose q1 x vector less than equal to b1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है, दिस फॉर्मुलेशन augments the pure quadratic program by adding quadratic terms to the constraints. It may be the case the most constraints are linear, so that Q1 matrix for those constraints are not present. But even if the single constraint is quadratic, the problem is classified as QCP. तो अगर एक भी इसमें से quadratic हो गई तो वो आप उसको QCP बोलेंगे। The quadratic terms, that is Q transpose Qx in the objective and in the constraints, are specified by n matrices where is the number of decision variables and it is the number of constraints. The basic formulation for a non-linear optimization, ठीक है, तो उसमें क्या है, g1x लेस देन इक्वल टू b1 g2, और ये मिनिमाइज फंक्शन सच दैट दीज आर द कांस्टेंट्स, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शंस हैं, which is a vector denoting the n-dimensional candidate solution. A non-linear program NLP, it is the most general formulation for an optimization. The objective and the constraints can be arbitrary functions of the decision variables, continuous or discontinuous. This generally comes at the price of longer computational times. अच्छा, अब इसमें देखते हैं, आगे चलते हैं जी, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं हम। फॉर्मली लीनियर प्रोग्राम इज एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ऑफ द फॉर्म, ये है मिनिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स, ये कॉस्ट है बेसिकली, ये वेक्टर है, एक्स जो है ना ये वेक्टर है, इसके अंदर बहुत सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ठीक है। सी ट्रांसपोज एक्स, ठीक है, और सब्जेक्ट टू ए एक्स इक्वल टू बी एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसकी जेनेरिक फॉर्म है लीनियर प्रोग्राम्स की। तो C belong to R की power n, B belong to R की power m and A belong to R की power m cross n. The vector inequality x greater than equal to means that each component of x is non-negative. लेकिन non-negative का मतलब क्या है कि उसमें 0 भी included है, सही है। Several variations to the above problems for the possible, for example, instead of minimizing we can maximize, or constraints may be in the form of inequality such as ax greater than b greater than equal to b or ax less than equal to b. We also refer to these variations as linear programs. In fact, as we shall see later, these variations can all be rewritten into the standard form shown above. The purpose of this section, अच्छा जी आगे चलते हैं, वो एग्जाम्पल आ गई। अच्छा जी, अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स x1 x2 x3 एंड x4, 4 प्रोडक्ट्स हैं भाई उसके पास, x1 x2 x3 x4। देयर आर 3 इनपुट्स टू दिस प्रोडक्शन प्रोसेस, 3 इनपुट्स हैं, यानी एक सिस्टम बना लें तो 3 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं, सही है, 4 आउटपुट्स x1 x2 x3 x4, और इनपुट्स कितनी है जनाब आपकी, 3 इनपुट्स हैं। वो इनपुट्स क्या हैं जी, लेबर है, जो लेबर काम करती है, उसमें क्या है, लेबर इन मैन वीक्स, घंटों के हिसाब से कितने घंटे की लेबर है। फिर किलोग्राम्स ऑफ रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल कितना है आपके पास, ठीक है, एंड बॉक्सेस ऑफ द रॉ मटेरियल बी, रॉ मटेरियल ए, kilograms of the raw material A and boxes of raw material B, raw material B के boxes और A के kilograms. Each product has different input requirements, ठीक है। In determining each week's production schedule, the manufacturer cannot use more than the available amounts of manpower and the 2 raw materials, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल हो सकती, ये इसकी एक लिमिट्स है। आगे देखते हैं, द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड, जो टेबल में इन्फॉर्मेशन है वो आगे आ रही है, वो वाला टेबल जो आप कह रहे थे। एवरी प्रोडक्शन डिसीजन मस्ट सेटिस्फाई द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द इनपुट्स, दिस कांस्टेंट्स कैन बी रिटन यूजिंग द डेटा इन टेबल 15.1। अच्छा, अब इसमें देखें, x1 प्लस 2x2 प्लस x3 प्लस 2x4 लेस देन इक्वल टू 20, ये टेबल है बेसिकली ना, ये वाला टेबल, ये टेबल, ये डेटा गिवन है आपको। डेटा क्या जी, इनपुट्स क्या है, मैन वीक्स, किलोग्राम ऑफ मटेरियल ए, किलोग्राम ऑफ मटेरियल बी, और आगे प्रोडक्शन लेवल्स को कैसे डिफाइन किया गया, x1 x2 x3 x4। अच्छा जी, मैन वीक्स x1 1 और x2 पे 2, x3 पे 1, x4 पे 2, तो टोटल इनपुट कितनी है 20, वो मैन वीक्स आपके पास अवेलेबल है। किलोग्राम मटेरियल ए x1 के लिए 6 है, x2 के लिए 5 है, तो आप इसको जो है वो मैथमेटिकली लिख सकते हैं ना, x1 प्लस 2 x2 प्लस x3 प्लस 2x4 लेस देन इक्वल टू 20, इसी तरह 6x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 प्लस 2x4 लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है। इसी तरह 3x1 प्लस 4x2 प्लस 9x3 प्लस 12x4 लेस देन इक्वल टू 75, ये देखो, बिकॉज द सही है, ठीक है, बिकॉज द नेगेटिव प्रोडक्शन लेवल्स आर नॉट मीनिंगफुल, यानी इसमें हम इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी नॉन नेगेटिव कंसिडर करेंगे, नेगेटिव
नहीं हम कह सकते हैं। वी मस्ट इम्पोज द फॉलोइंग नॉन नेगेटिविटी कॉन्स्टेंट्स ऑन द प्रोडक्शन लेवल्स कि एक्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देखें ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ये मैं ये इक्वल हटा दूं तो इसका मतलब है पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है ये, सही है, नेगेटिव का मतलब क्या होगा लेस देन जीरो, नॉन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, वो नॉन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं है लेकिन जीरो उसमें शामिल है, वो नॉन पॉजिटिव है फॉर एग्जाम्पल, सही है। Now suppose that 1 unit of the product X1 sells for $6, X2, X3, X4 sell for $4.75। अब ये असल काम की बात कर रहा है भाई, कितना पैसा आएगा है, रेवेन्यू कितना होगा, तो टोटल रेवेन्यू फॉर एनी प्रोडक्शन डिसीजन वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे 6x1 प्लस 4x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4। ये आपका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, और इसको मैंने क्या करना है, मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, इसको मैंने मैक्सिमाइज करना है। द प्रॉब्लम इज टू मैक्सिमाइज एफ सब्जेक्ट टू द गिवन कॉन्स्टेंट्स, जो ऊपर गिवन कॉन्स्टेंट्स है मैन आवर्स की और किलोग्राम ऑफ मटेरियल ए की और बॉक्सेस ऑफ मटेरियल बी की, ठीक है। द 3 इनइक्वालिटीज एंड 4 नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स नो दैट द अबव प्रोग्राम। अच्छा जी, अब इसको हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स। अब इसमें देखें ज़रा, सी ट्रांसपोज एक्स, सी ट्रांसपोज एक्स, सी ट्रांसपोज एक्स, सी ट्रांसपोज, जो सी फंक्शन है वो आपका क्या है, बेसिकली ये वाला फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है 6, ये आपका सी फंक्शन है 6475, ठीक है 6475, ठीक है। और आगे x1 उसका ट्रांसपोज लेंगे, सी ट्रांसपोज क्यों ले रहे हैं, ताकि ये प्रोडक्ट हो सके, ज़रब हो सके, ठीक है। ये भी कॉलम वेक्टर है, सी एक्स भी कॉलम वेक्टर है, सी ट्रांसपोज कर देंगे तो वो रो वेक्टर बन जाएगा फिर आपका, फिर ये ज़रा मुमकिन होगी, ऐसे ही हुआ ना, ठीक है। सी ट्रांसपोज इंटू एक्स, फिर इस तरह आप उसको ज़रब दोगे, ये करके देखते हैं हम जी। मैक्सिमाइज सी ट्रांसपोज एक्स, मैक्सिमाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेवेन्यू फंक्शन है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस दैन इक्वल टू बी, ठीक है। ये जो इनइक्वालिटी एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू बी, ये मतलब कि नॉन नेगेटिव, और सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस दैन इक्वल टू बी। अब इसमें जो ए मैट्रिक्स, इसमें क्या बन रहा है आपका, ए मैट्रिक्स ये सारे बन रहे हैं, ये सारे ए मैट्रिक्स है बेसिकली, और ये बी है आपका, ये वाला जो है ना ये बी है, ये आपका ए बन रहा है इस केस में, और ये आपका क्या है बी 20 100 75, ये आपका बी बन रहा है। आगे देखते हैं इसको, ये देखें सी ट्रांसपोज क्या है 6475, यही था बेसिकली, सी ट्रांसपोज है ये, यानी सी वेक्टर इसका कॉलम वेक्टर है, एक्स वेक्टर क्या है एक्स ट्रांसपोज, यानी इसका ट्रांसफॉर्म कॉलम वेक्टर है नहीं, x1 x2 x3 x4 का ट्रांसपोज। ए वेक्टर ए मैट्रिक्स इसमें क्या बन रहा है 1 2 1 2 6 5 3 2 3 4 9 12, ये वाला यहाँ से, और बी आपका क्या बन रहा है 20 100 और 75। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम गिवन हो तो उससे आप इसका यानी इसको लिखना आपको अब आ गया है मैथमेटिकली, हमने इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन के फॉर्म में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम कैसे लिखना है, सही है। तो ये क्या किस तरह लिखोगे, मैक्सिमाइज द सी ट्रांसपोज एक्स सब्जेक्ट टू ए एक्स लेस देन इक्वल टू बी और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ए मैट्रिक्स यहाँ से निकल आएगा, बी मैट्रिक्स ये आपका यहाँ से निकल आएगा, सही है। नहीं जी ये अच्छा, आगे चलते हैं। अनदर एग्जांपल दैट इलस्ट्रेट्स लीनियर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स डिटरमिनिंग द मोस्ट इकोनॉमिकल डाइट। आगे चलते हैं इसको थोड़ा। अच्छा अब ये देखें, ये देखें ये दो तरह के फंक्शंस होंगे जिससे हमारा पाला पड़ेगा, आगे हम करेंगे कॉन्वेक्स फंक्शन और कनकेव फंक्शन। ये फिजिक्स में हमने लेंस वगैरह पढ़े थे ना, ये वही है। कॉन्वेक्स फंक्शन क्या होता है, जिसमें ये मतलब ये आप कह लें मिनिमा आ रहा है, वैली टाइप का है, और इसमें आप देखेंगे जैसे जैसे आगे जा रहे हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू x से ज़्यादा है, और ये आपका जो है ना कन्वेक्स फंक्शन कहलाता है। और ये जो फंक्शन होता है यूं इस तरह वाला, इसको हम कहते हैं कनकेव फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कनकेव फंक्शन। दिस इज कनकेव फंक्शन। तो ये दो तरह के फंक्शन होते हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा चूंकि आगे मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा मैट्रिक्स को फिर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो जी, तो इन्वर्स हम कैसे निकालते थे मैट्रिक्स का, लास्ट न्यूमेरिकल लास्ट लेक्चर था उसमें हमने थोड़ा सा किया भी था। अब ये फॉर्मूले कर लेते हैं। ए इन्वर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या था, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर क्या था, -1 की पावर i प्लस जे इंटू माइनर, माइनर माइनर के साथ -1 की पावर i प्लस जे लगाया, कोफैक्टर बन गया। कोफैक्टर्स निकाल के उसका मैट्रिक्स बनाया, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो क्या बना, एडजॉइंट, और फिर उसको डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट के साथ तो निकल आया इनवर्स।
और अगर इस इन्वर्स को ओरिजिनल मैट्रिक्स ए से मैं ज़रब दे दूं तो आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये इसकी निशानी है। आपने एक मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला, अब आपने सही निकाला या गलत निकाला, कैसे, हाउ विल यू वेरीफाई, ज़रब दे दो। ठीक है, अगर ज़रब दोगे तो क्या आना चाहिए, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें देखते हैं कि ए प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स में क्या आएगा, ए इनवर्स डॉट ए या ए डॉट ए इनवर्स दैट इज इक्वल टू आई, 2/2, 3/2, 4/4। सही है, ए इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो ए आएगा। सही है। अच्छा, और ए बी होल इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स आएगा, नॉट ए इनवर्स डॉट बी। ये देखिए मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव नहीं होती, ए डॉट बी इज नॉट इक्वल टू बी डॉट ए, मैट्रिक्स में नहीं होती। ये सबसे ज्यादा गलती होती है। एनी हाउ, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 3 4 1। जरा ये कैलकुलेट करें फटाफट। इसका तो बड़ा आसान फार्मूला नहीं है, इसका एडजॉइंट निकालने का बड़ा आसान तरीका है। इसका क्या था, हाँ, इसका इसका इन्वर्स बड़ा इजी निकल आता है। इसका इन्वर्स क्या होगा, 2 into 1। ठीक है, चलने करने देता है इसको जी। तो इसका इन्वर्स अब हम निकालते हैं। ये देखें, पहले ही आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि ये जो है इसका डिटर्मिनेंट कोई नंबर हो, क्योंकि अगर ये ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये 2 3 4 1, तो 2 into 1 -3 into 4 -10, इसका इसका पॉसिबल है डिटर्मिनेंट। अब ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। और एडजॉइंट कैसे निकालना है, को फैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो ये क्या आ जाएगा, 1 को फैक्टर इसके आप निकाल लें, यानी इसका को फैक्टर क्या आ जाएगा 1, इसका को फैक्टर 2, इसका को फैक्टर क्या आ जाएगा 4, और यहाँ इसका को फैक्टर क्या आ जाएगा 3। तो अच्छा, 1 -4 माइनस को फैक्टर नहीं, -1 की पावर आ जाएगा ना, 1+2, तो यहाँ माइनस आ जाएगा साथ में को फैक्टर में। ठीक है, 1 -4 -3 2, इसका ट्रांसपोज लें 1 2 -3 -4। तो इसको हम, हमारे पास शॉर्टकट क्या होता है, 1 2 यानी डायगोनल वाले मूव कर दें और बाकियों के साथ नेगेटिव साइन लगा दें। लेकिन ये 2/2 में है, 3/3 में नहीं है। ठीक है, वहाँ आपने मेथड पूरा यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आपका एडजॉइंट आ गया। इसको तकसीम कर दें -10 के साथ, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इनवर्स -0.1 +0.3 +0.4 और -0.2। अब अगर चेक करना है कि ये सही निकाला तो क्या करें कि आप ए को इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या इनवर्स को ए से कर दें, तो आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो फॉर अ 2/2 matrix, the adjoint of the matrix can be directly obtained by changing the positions of the main diagonal element and by changing the signs of the remaining elements। अब इसका डायरेक्ट आप कैसे एडजॉइंट निकालेंगे, 8 1 -4 -5, 8 1 -4। The result is directly used here with when solving the problems when matrix A has the order 2/2. Note that for any other order of the matrix, the adjoint must be obtained as the transpose of the co-matrix। देखें, for any other order of matrix 3/3 4/4, the adjoint must be obtained as transpose of the co-matrix। ठीक है, आपने को फैक्टर बना के मैट्रिक्स में फिर उसका ट्रांसपोज लेना है। आ गई जी वो बिला स्टेट स्पेस मॉडल। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। इसने आपकी जो है ना जान नहीं छोड़नी। ठीक है, क्योंकि आगे हमने ये ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम जब सिस्टम पे लगाने हैं तो ये उसमें आएगा, यूज होगा। ठीक है, तो इसका ये देखें, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। इसका लैप्लास लें तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ ज़ीरो, यही है, यही होगा। ठीक है, अच्छा जी, और ए इंटू एक्स ऑफ एस प्लस बी इंटू यू ऑफ एस। अब इसमें पता है क्या, इसको हम अगर ज़ीरो एज्यूम कर लें, लेट्स सपोज ज़ीरो, कहीं मतलब नहीं भी होता, उसके साथ ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट मेक इट सिंपल, तो ज़ीरो कर लें। तो एस इंटू एक्स ऑफ एस उसको इधर ले आए, माइनस ए इंटू एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस। इसमें से एक्स ऑफ एस कॉमन निकाल दें, एस आई, यानी इसको एस माइनस ए। अब एस क्या है, एस आई है। बेसिकली ये आइडेंटिटी 1 नहीं होता, इसमें इसमें आई होता है। 2/2 का सिस्टम है तो आई होगा 2/2 का, 3/3 का सिस्टम है तो 3/3 का। तो एस माइनस ए नहीं आप करेंगे, आप लिखेंगे एस आई माइनस ए। सही है, एस आई माइनस ए इज इक्वल टू बी इंटू यू ऑफ एस। अच्छा, अब आप क्या करें, अब आप ऐसा करें, इसको आप एक्स ऑफ एस उस तरफ निकालें कॉमन, यहाँ पे ये। अब आपने एक्स ऑफ एस अगर निकालना है तो दोनों तरफ इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करना है।
तो x ऑफ s विल बी इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू यू ऑफ एस। ठीक है, और सही है, इसके इस स्टेप की समझ आई। देखें एस आई माइनस ए एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया ना, दोनों में एक्स ऑफ एस कॉमन था। देखिए सबसे पहले लेप्लेस लिया इसका, तो ये क्या आ जाएगा, डॉट है ना तो एस ज़रब खाता है, और अगर इंटीग्रेशन हो तो उसमें वन ओवर एस आता है लेप्लेस। ठीक है, एल एस टी इसके लिए ज़रूरी है, एल एस टी लीनियर सिस्टम आपने पढ़ा होगा, लीनियर सिस्टम थ्योरी नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं, अब ये चीज़ आपकी रिवाइज हो जाएगी। एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। इसको कहते हैं स्टेट स्पेस मॉडल, मैथमेटिकल मॉडल ऑफ एनी सिस्टम, यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, अब आप इसका लैप्लेस लेंगे, आ जाए एस इंटू एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो, जो कि हम जीरो एज्यूम कर लें, ए एक्स ऑफ एस प्लस बी यू, इसको इधर ले आए तो ये आ जाएगा एक्स एस एक्स माइनस ए एक्स प्लस इज इक्वल टू बी यू, इसमें से एक्स कॉमन निकाल दें, एस आई माइनस ए। आई क्या चीज़ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। बेसिकली ये इस तरह होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपका ए है 1 2 3 4, तो एस आई क्या होगा आपका एस इंटू 1001, तो एस आई क्या हो जाएगा एस जीरो जीरो एस, तो एस आई माइनस ए क्या हो जाएगा एस माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एस माइनस फोर। अब क्लियर हो गया, ये है बेसिकली एस आई माइनस ए। अब दोनों तरफ क्या करें आप, इनवर्स ले लें खत्म करने के लिए ना, इस पूरे ये पूरा मैट्रिक्स है, इसका इनवर्स से जरब देंगे तो ये वन हो जाएगा ना, इनवर्स इसका इनवर्स जरब ये वन आंसर आ जाएगा, तो ये वन आ गया, लेकिन इस तरफ ये आ जाएगा इनवर्स, दोनों साइड पे इसका इनवर्स ले लिया, तो एक्स आई माइनस ए इनवर्स बी यू। अच्छा, अब अगली इक्वेशन देखें, y ऑफ s इज इक्वल टू सी इंटू एक्स ऑफ एस प्लस डी यू ऑफ एस। इसमें ये एक्स पुट कर दें तो ये आपका आ जाएगा एस सी इंटू एस आई माइनस ए होल इनवर्स बी, ठीक है, u प्लस डी यू। अब आप एक काम और करें, y ऑफ s इज इक्वल टू, इसमें से u ऑफ s कॉमन निकाल दें, कॉमन देखें सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी यू प्लस डी यू। अब u दोनों में कॉमन निकाल के डिवाइड कर दें, ये क्या बनता है ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या बन गया सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। कई मरतबा डी जीरो होता है, डी जीरो होता है कई मरतबा, तो ये डी खत्म हो जाएगा, तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स इंटू बी। ए बी सी डी क्या चीज है, ये वाले मैट्रिक्स हैं, ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स डी, डी को आप जीरो एज्यूम कर लें तो ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ए बी और सी मैट्रिक्स से आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा, और ये क्या होता है यूनिक, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है यूनिक। सही है, ठीक है, तो दिस इज अच्छा जी, एक्स डॉट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू, y is equal to cx plus du, taking Laplace of both sides, s into x of s minus x of 0 is equal to ax plus bu. अब y is equal to cx plus du. Note that as the system is time invariant, the coefficient matrix a, b, c and d are constants, while the definition of transfer function is based on the assumption of zero initial conditions. हम ये assume करते हैं ये जीरो है, अगर ये जीरो नहीं है फिर ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाता है। अच्छा, तो x of 0 0 हो गया, उसके बाद आगे देखते हैं एस एक्स ऑफ एस ए एक्स प्लस बी, इसको उधर ले जाएं, ठीक है, एस कॉम ये एक्स ऑफ एस कॉमन निकाल लें, ये मैंने कर दिया सर अब स्टेप्स, ठीक है, और सॉरी इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देखें एक्स ऑफ एस इज इक्वल टू एस आई माइनस ए इनवर्स बी इंटू यू, वाई ऑफ एस इज इक्वल टू सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी यू। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा वाई ऑफ एस ओवर यू ऑफ एस सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। ठीक है, और ये इसका क्या है ट्रांसफर फंक्शन है, और ये क्या फंक्शन है, ये एस आई माइनस ए होल इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय इसका डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ एस आई माइनस ए ओवर एस आई माइनस ए का डिटर्मिनेंट। सही है, वैसे अगर आप देखें तो बड़ी खौफनाक इक्वेशन लगती है, पता नहीं क्या है, क्या है भाई, सी जरब एडजॉइंट ऑफ एस आई, ये चीज़ है ना, एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट। इनवर्स की यही डेफिनेशन हमने पढ़ी ना कि इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट
ओवर उसका डिटर्मिनेंट, ये देखें एडजॉइंट ओवर उसका डिटर्मिनेंट इनटू बी प्लस डी। एक इतनी खौफनाक चीज़ वैसे लगेगी, लेकिन अब आपको समझ आ रही है इसकी। ठीक है, अच्छा जी, द स्टेट मॉडल ऑफ द सिस्टम, वही बात आ गई, स्टेट मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज नॉट यूनिक। आप एक होती है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन, पढ़िए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे ना लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे लीनियर सिस्टम थ्योरी के, लीनियर सिस्टम थ्योरी के आई थिंक उसके नहीं, आई थिंक रिकॉर्ड हुए, आई थिंक नहीं, एडवांस कंट्रोल सिस्टम में एक आधा लेक्चर है, वो पढ़ लें आप। सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि एक स्टेट मॉडल आपने बना दिया, एक उसके प्लास्टिक सर्जरी कर दें आप, वो एक दूसरा स्टेट मॉडल बना दें, ठीक है, तो उसको हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, लेकिन वो उससे ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, उसमें डायगोनल फॉर्म में आ जाएगा, आपकी सारी जो आइगन वैल्यूज होंगी, जो क्लोज लूप होल्स होंगे, वो डायगोनल पे आ जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको कहते हैं एम इनवर्स ए एम। एम एक मैट्रिक्स होता है, जो अभी हम मैं आपको कराता हूँ, एम मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स उसको बोलते हैं। एक मैट्रिक्स ए है, वो कोई अजीब व गरीब फॉर्म में है, अब आपने सिंपल उसको सॉल्व करना है आगे, तो उसका तरीका क्या होता है, उसकी डायगोनलाइजेशन करें, यानी उसकी जो आइगन वैल्यूज हैं वो उसके डायगोनल पे आ रही हो तरतीब के साथ, मतलब -1 -2 -3 है, ठीक है, तो उसकी डायगोनल पे आ रही होगी, यानी कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उसका उसको इस तरह हम लिखते हैं, ये देखें, यानी जो इस बुक के अंदर नोटेशन है, जैसे अगर ए मैट्रिक्स है कोई भी आपका है, ए बी सी डी, और उसका जो डायगोनल है उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। अब इसकी लेट्स से आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2, तो उसमें क्या हो जाएगा, λ1 0 0 λ2, इसको कहते हैं डायगोनलाइजेशन। अब वो कैसे है वो भी आता है, उसका तरीका होता है, दिस इज इक्वल टू एम इनवर्स ए एम। अब आपको ये एम पता होना चाहिए, पहले आप पहले एम मालूम करोगे, एम वहीं से निकलेगा, आइगन वैल्यू फाइंड करोगे, आइगन वैल्यू के अगेंस्ट आइगन वेक्टर फाइंड करोगे, फिर उन आइगन वेक्टर से एक मैट्रिक्स बनाओगे जो कि एम होगा, मॉडल मैट्रिक्स, फिर उसका इन्वर्स भी फाइंड करोगे, ठीक है, और फिर क्या करोगे, एम इनवर्स ए करोगे, फिर उसको एम से ज़रब दोगे तो ये आ जाएगा। और इसकी क्या खूबसूरती है कि ये इसके बराबर है। अब ये क्यों चाहिए होता है हमें, इसकी भी एक वजह, इसकी वजह क्या है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, खैर वो बात फिर आगे से आगे चलती जाती है, वो मैं वापस आ जाता हूँ। लीनियर सिस्टम थ्योरी जो है ना वो बेसिकली आपको आनी चाहिए, क्योंकि आगे सिस्टम पे हमने अप्लाई करने ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स, तो आपको उसकी समझ तो होना, आप लिख सकें, अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकें वेरिएबल्स की फॉर्म में, और फिर उस पर आपने ये ऑप्टिमाइजेशन के एल्गोरिदम्स लगाने हैं। अच्छा जी, द स्टेट मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज नॉट यूनिक, बट द ट्रांसफर फंक्शन ऑब्टेन फ्रॉम एनी स्टेट मॉडल इज यूनिक, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्टेट इन द सिस्टम मॉडल। अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग दी ट्रांसफर फंक्शन के जो डिनोमिनेटर होते हैं, ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है अभी, आउटपुट ओवर इनपुट इन दी एस डोमेन, आउटपुट ओवर इनपुट, और उसका एक ट्रांसफर फंक्शन होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को जीरो के बराबर रखते हैं तो क्या आते हैं, जीरोस, डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखते हैं क्या आते हैं, पोल्स। डिनोमिनेटर को जीरो के बराबर रखते हैं उसको क्या कहते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, क्या बोलते हैं उसको, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। उससे क्या निकलते हैं, आइगन वैल्यूज या क्लोज्ड लूप पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स। भाई वो क्यों जरूरी है, भाई वही जरूरी है क्योंकि उससे पता चलता है कि आपका सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। तो the roots of the equation are the closed loop poles of the system, SI determinant equal to 0. The stability of the system depends on the roots of the characteristic equation. In matrix algebra, the roots of the equation SI minus equal to 0 are called the eigenvalues of the matrix A and are generally denoted by the lambda. Lambda से उसको denote करते हैं। अच्छा जी, अब consider system having the state model, ये state model आ गया, obtain its transfer function। ये करें ज़रा इसकी प्रैक्टिस करें हम जी। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है जी, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी, तो इसको हम ये क्या लिखते हैं, एडजॉइंट एस आई माइनस ए ओवर एस आई माइनस ए, और एस आई माइनस ए कैसे निकाला, एस इंटू आई माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको निकाल लें एस आई माइनस ए, तो ये आपका एस आई माइनस ए आ गया, एस प्लस टू 3 माइनस 4 एस माइनस 2, इसका लें आप डिटर्मिनेंट। अच्छा पहले एडजॉइंट इसका ले लें, वो क्या होगा जनाब, इसको मूव कर लें और इनकी साइंस बदल दें, तो -3 4, ठीक है, और डिटर्मिनेंट क्या आ गया आपका
S+2 मल्टीप्लाइड बाई S-2 -3 इंटू -4, तो ये जनाब आपका आ गया S²+8, ऐसे ही -A इनवर्स आपका ये आ गया मैट्रिक्स। अच्छा, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, 1 1 S-2 -4 S+2, उसके बाद ये आपका आ गया C इंटू एस माइनस इनवर्स B ओवर ये आपका डिटर्मिनेंट। तो ये जनाब आपका आंसर है 8S+1 ओवर S²+8, यही आंसर है। चलिए गुड, शाबाश। अच्छा, आगे चलते हैं जी, मीमो सिस्टम्स, माइमो कह लें, मीमो कह लें, मल्टी इनपुट्स। एक होता है सीसो साइसो, यानी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट, एक इनपुट है और एक आउटपुट है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन है, आउटपुट ओवर इनपुट। और प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता ना, प्रैक्टिकली मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। तो इस केस में ट्रांसफर फंक्शन नहीं होता, ट्रांसफर मैट्रिक्स होता है। क्या होता है? ट्रांसफर मैट्रिक्स। और ट्रांसफर मैट्रिक्स के जो अंदर के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट ओवर इनपुट होते हैं। सही है। तो अब ये देखते हैं कि फॉर मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम्स, a single transfer function does not exist. There exists a mathematical relation between each output and all the inputs. Hence, for such system, there exists a transfer matrix rather than the transfer function. Determine the transfer matrix for the MIMO system given by ये देखें अब x1 डॉट ओवर x2 डॉट, दो स्टेट्स हैं इसमें। अच्छा, x1 x2 बेसिकली स्टेट वेरिएबल्स होते हैं। स्टेट वेरिएबल देखें, एक सिस्टम है उसमें एक इनपुट होगी एक आउटपुट होगी, इनपुट u है आउटपुट y है, लेकिन इसके अलावा भी वो नीड सम इंफॉर्मेशन। अगर उसमें एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट्स है, अगर उसमें ऑर्डर है सिस्टम का, लाइक कैपेसिटर इंडक्टर लगा है, तो वो मस्ट नो दी इंडक्टर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज। उसकी क्या इनिशियल, उसको हम स्टेट वेरिएबल कहेंगे। ठीक है। तो x1 डॉट x2 दो स्टेट्स हैं इसमें, 0 3 -2 -y, x1 x2 प्लस ये क्या है ax प्लस bu। अब u दो हैं, अब आपके पास u1 u2 दो इनपुट्स हैं, u1 एंड u2, यू हैव टू इनपुट्स, ये टू इनपुट्स हैं इसकी। ठीक है। तो इसको किस तरह मैं लिखूंगा मैथमेटिकली, x डॉट इज इक्वल टू, इसको जरा लिख के मुझे बताएं जरा कैसे आप लिखेंगे इसको। इसको लिखेंगे हम इस तरह, यहीं से देखें, x1 डॉट इज इक्वल टू 0x1 0 हो गया, 3x2 हो गया, प्लस u1 प्लस u2, ये है। x1 नहीं इसमें आएगा क्योंकि वो 0 है। ठीक है ना। इसको इससे ज़रब देंगे आप, और इसको इससे ज़रब देंगे तो ये x1 डॉट बनेगा, और x2 डॉट किसके बराबर होगा, इट इज़ इक्वल टू -2x1। इसको मैं इस तरह लिख देता हूँ, 0x1 प्लस -2x1 -5x2 प्लस u1 प्लस u2। यहाँ से अब मैट्रिक्स बनता है x1 x डॉट ये, और यहाँ पे 0 3 -2 -5 ये बन गया, x1 x2 आ गया, और साथ में ये क्या आ जाएगा 1 1 1 1 u1 u2। सही है। ठीक है। अच्छा जी, और तो 0 3 -2 -5 x1 x2 1 1 1 1 u1 u2, और y1 क्या होगा, y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, y2 इज इक्वल टू x1, क्यों ये 0 है। ठीक है। तो y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2, y2 इज इक्वल टू x1। सही है। दो आउटपुट्स हैं, दो इनपुट्स हैं, तो अब इसमें ट्रांसफर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। जिसका अंदर एलिमेंट्स होंगे T1 T2 T3 T4। T1 क्या होगा, y1 ओवर x, y1 ओवर u1। T12 क्या होगा, ये देखें ना, देखें ट्रांसफर मैट्रिक्स बनेगा इसका। ट्रांसफर मैट्रिक्स क्या बनेगा, T11 T12 T21 T22। T11 क्या है, y1 ओवर u1 s डोमेन के अंदर है। ठीक है। और T12 क्या है, y2 ओवर u1, ये क्या है y1 ओवर, ये क्या बन रहा है आपका y1 ओवर u2, यस, और ये बन रहा है आपका y2 ओवर u2। ये ट्रांसफर मैट्रिक्स। सही है। तो ये आपका ट्रांसफर मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि दो इनपुट्स हैं और दो आउटपुट्स हैं। ठीक है। तो y1 ओवर u1, y2 ओवर u1, y1 ओवर u2 इंटू आगे y2 ओवर u2। तो दिस इज योर ट्रांसफर मैट्रिक्स। सही है। अच्छा जी, इसमें आप देखें, बनाएं ज़रा इसको, इसका ऑपरेशन शुरू करते हैं आप पोस्टमार्टम। तो a इज इक्वल टू 0 3 -2 -5, b का आपका 1 1 1, c का आपका 2 1 1 0, d आपका क्या है 0। भाई d 0 क्यों है, 0 ही है, d है कोई नहीं।
अच्छा, डी मैट्रिक्स पता क्या होता है? ये होता है फीड फॉरवर्ड मैट्रिक्स, जो इनपुट से सीधा आउटपुट पे जाता है, सीधा आउटपुट पे जाता है। वो इस वक्त जो है वो जीरो है इसमें से नहीं हो। ट्रांसफर मैट्रिक्स क्या है? सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी प्लस डी। तो अब एस आई माइनस ए निकाल लें तो ये आता है आपका एडजॉइंट, इसका निकाल लें और उसके बाद इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, एस आई माइनस ए इनवर्स निकाल लें, तो ये जनाब आपका आ जाता है गंदा सा ये आप खुद कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस। अच्छा जी, सी इंटू एस आई माइनस ए इनवर्स बी, ठीक है, तो ये आपका बड़ा गंदा सा एक ये आ जाता है, ये ठीक है, ये ट्रांसफर मैट्रिक्स आ गया अब आपका, ठीक है, दिस इज़ योर ट्रांसफर मैट्रिक्स। सही है, तो इसमें क्या है कि वाई वन वाई टू, इसमें थ्री एस प्लस 14 ओवर थ्री, ये बेसिकली आपका ट्रांसफर मैट्रिक्स है यू वन इंटू यू टू, ठीक है। द अबव रिलेशन इंडिकेट्स दैट ईच आउटपुट, ठीक है, ईच आउटपुट यानी यू वाई वन ओवर यू वन ये चीज़ है, वाई वन ओवर यू टू ये चीज़ है, सही है, वाई टू ओवर यू वन, ठीक है, ये चीज़ है, और वाई टू ओवर यू टू, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लें, तो पहले मैंने करके दिया आपको, इसमें है आपका वाई, हाँ ठीक है, वाई वन वन टू ये सही है, वन टू, तो ये बेसिकली आपका क्या बन रहा है? वाई वन ओवर यू वन, वाई वन ओवर यू टू, ठीक है, ये वाई टू ओवर यू वन, ठीक है, वाई टू ओवर यू वन, वाई टू ओवर यू टू, सही है, वाई टू वाई वन ओवर यू वन, यू टू वाई टू यू वन ओवर यू टू, ठीक है। ये थोड़े से इसको करेक्शन कर लें इसकी। अच्छा जी, तो ये जनाब आपका आ गया ट्रांसफर मैट्रिक्स, इसमें कि वाई ऑफ एस इज इक्वल टू टी डॉट एम डॉट इज इक्वल टू यू। टी एम क्या है? ट्रांसफर मैट्रिक्स, बिकॉज इट इज़ मल्टी इनपुट एंड मल्टी आउटपुट सिस्टम्स। आगे चलते हैं। आइगन वैल्यूज़ ये आपने पहले की हुई हैं कि आइगन वैल्यूज़ क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं कि कंसिडर एन इक्वेशन Ax इज इक्वल टू वाई विच इंडिकेट्स द ट्रांसफॉर्मेशन n क्रॉस वन वेक्टर मैट्रिक्स n क्रॉस वन मैट्रिक्स y बाई n मैट्रिक्स ऑपरेटर। तो Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, यानी ग्राफिकली ये होता है कि उसके लाइन के अंदर ही आगे एक और वेक्टर बन रहा होता है, Ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। अब इस लैम्डा एक्स को इस तरफ ले जाएं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो लैम्डा एक्स माइनस ए एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स कॉमन निकाले तो ये बन जाएगा लैम्डा आई माइनस ए। ये आई कहाँ से आ गया? क्योंकि ये मैट्रिक्स है, इसमें आप वन नहीं लिख सकते, ये आई मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो लैम्डा आई माइनस ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपकी आइगन जो है वेक्टर यहाँ से बनेगा। ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होता है कि ऑब्वियस सोल्यूशन, तो लैम्डा आई माइनस ए इज इक्वल टू द होमोजेनियस इक्वेशन हैव अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन ओनली अंडर दिस कंडीशन। लैम्डा आई माइनस ए इसका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ये एक्स तो ट्रिवियल सोल्यूशन है ना, कि जीरो तो ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसके अलावा अगर कोई सोल्यूशन हो सकता है तो वो ये है लैम्डा आई माइनस ए को अगर आप जीरो करें तो इस इक्वेशन को कहते हैं करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसको हम इस तरह से लिखते हैं लैम्डा आई माइनस ए लैम्डा की पावर एन प्लस ए वन लैम्डा की पावर एन माइनस वन सो ऑन प्लस ए एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। द एन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, द वैल्यूज ऑफ लैम्डा satisfying the above equation are called the eigenvalues. The equation 2 is similar to the Si minus a equal to 0, which is the characteristic equation. Lambda satisfying characteristic equation are called the closed loop poles of the system. The eigenvalues are the closed loop poles of the system. ये असल चीज़ है। और पोल्स क्या होते हैं? आपने राइट हाफ प्लेन लेफ्ट हाफ प्लेन पढ़ा होगा ना, तो पोल क्या होता है? ई की पावर बेसिकली लेफ्ट हाफ प्लेन में होना क्यों जरूरी है? क्योंकि सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है ना, तो वो जो सिग्मा नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि वो ई की पावर होता है। तो ई की पावर अगर नेगेटिव होगी तो वो स्टेबल होगा, अगर ई की पावर जीरो हो जाएगी तो वो हो जाएगा मार्जिनली स्टेबल अनडैम्प्ड, और अगर वो पॉजिटिव आ गई फिर तो गए आप, वो तो फिर राइजिंग हो जाएगा, ठीक है, वो तो अनस्टेबल हो जाएगा। ई की पावर एनीथिंग पॉजिटिव इज अनस्टेबल, ठीक है। तो any non-zero vector xi such that axi is equal to lambda I, xi is said to be eigenvector associated with the eigenvalues। तो अब इसमें जो आइगन वैल्यू आपने निकाली, फॉर एग्जांपल आपने दो आइगन वैल्यूज निकाली, अब जो दो आइगन वैल्यूज निकाली उसके अगेंस्ट फिर आप आइगन वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आइगन वेक्टर, ठीक है। और उन आइगन वेक्टर्स को मिला के अगर आप एक मैट्रिक्स बना लें उसको कहते हैं मॉडल मैट्रिक्स। आगे हम देखते हैं इसको। अच्छा, if the rank of the matrix lambda I minus A is R, then there are n minus R independent eigenvectors. Similarly, another important point is that if the eigenvalues of matrix A are all distinct,
द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इज n माइनस वन when n इज द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है अगर आपकी आइगन वैल्यूज रिपीट कर जाए, मतलब आपकी आइगन वैल्यू रिपीट कर रही है, फिर थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसमें फिर डेरिवेटिव लेने पड़ जाते हैं हमें। ठीक है, यस यस यस। अच्छा आगे चलते हैं। मैथमेटिकली द आइगन वेक्टर कैन बी कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द को फैक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये एक मेथड है, ठीक है, इस तरह भी कर सकते हैं, एक कन्वेंशनल मेथड, आई थिंक आपने कन्वेंशनल मेथड से निकाला होगा वो आइगन वेक्टर, ये मेथड भी है, ये भी मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है। अच्छा, एम आई इज इक्वल टू आइगन वेक्टर फॉर द लेमडा आई, जो क्या है को फैक्टर्स, को फैक्टर, को फैक्टर, ये आगे एग्जाम्पल से पता चलेगा आपको, इस तरह शायद थोड़ा मुश्किल लगे। अच्छा जी, मॉडल मैट्रिक्स एम, ये मॉडल वेक्टर्स क्या होता है, ये सारे जो आइगन वेक्टर्स निकाले ना उनको मिला के जो बना रहे हैं वो ये बनता है एम वन एम टू एम एन। ये एग्जाम्पल करते हैं उससे क्लियर होगा। और उसके बाद मैंने आपको एक डायगोनल मैट्रिक्स वाला बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये वाला जो मैट्रिक्स होता है ये क्या होता है, इसमें सारी की सारी आइगन वैल्यूज आपकी डायगोनल पर आ रही होती हैं। क्या आ रही होती हैं? डायगोनल। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हम स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स इजीली निकाल लेते हैं। देखें एस आई माइनस ए इनवर्स पता है क्या है? ये एस डोमेन के अंदर है, टाइम डोमेन के अंदर पता ही क्या है? ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी, आप लेप्लेस करके देख लें। ई की पावर ए एक्स का कोई लेप्लेस का नहीं है, ई की पावर ई के पावर टी का क्या लेप्लेस होता है? वन ओवर एस माइनस वन, यही होता है ना। ई की पावर टी, ई की पावर टी होता है वन ओवर एस माइनस वन, यही होता है ना। तो अब ई की पावर ए टी क्या होगा? एस माइनस ए या एस आई माइनस ए, शुक्र है आप समझ आ गई। तो ये स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, यहीं से अंदाजा लगा लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ई की पावर जो है वही बताता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, ई की पावर ए टी है टाइम डोमेन के अंदर, ये जो एस आई माइनस ए इनवर्स नहीं है, एस डोमेन में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। टाइम डोमेन में ये क्या है, इसका इनवर्स लेप्लेस लें, वो क्या बन जाएगा? ई की पावर ए टी, ई की पावर ए टी। अब इसका जो इनवर्स लेंगे ना आप, तो इसका सिंपल हो जाएगा ई की पावर लैम्डा वन टी, ई की पावर लैम्डा टू टी। इसके अलावा अगर कोई और फॉर्म होगी वो नहीं हो सकती सर। अगेन ये लीनियर सिस्टम के कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े, सही है, तो अभी हम इस पे रहते हैं। तो डायगोनलाइजेशन क्या होता है कि जब आपके पास एम वेक्टर एम एक मैट्रिक्स आ जाता है, उसकी मदद से आप क्या करते हैं, ये है सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एम इनवर्स ए एम या एम इनवर्स एम, बेसिकली एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू दिस, ये एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। देखें ए एम इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, और इसके फिर आप क्या कर लें, इसका जो है ए एम इज इक्वल टू एम ए, आप दोनों तरफ इक्वेशन को एम इनवर्स से ज़रब दे दें, तो एम इनवर्स ए एम इज इक्वल टू ए, ये वाला ए, ये वाला, तो ए इज इक्वल, दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। ये अगेन एक मेथड होता है, both A and this have same characteristic equation, both this and this have same eigenvalues. Due to the transformation M inverse in the eigenvalues of matrix A remain unchanged in matrix A converted to diagonal matrix. यानी ये मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? डायगोनल फॉर्म। अच्छा आगे एक और मैट्रिक्स पाइन आते हैं, वो है वेंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको फिलहाल अभी स्किप कर देते हैं, इसको रहने दें। अच्छा जी, अब इसमें देखें, ये देखें ना वेंडरमॉन्ट, चलिए बता देता हूँ आपको। वेंडरमॉन्ट मैट्रिक्स है, अब आपका ये मैट्रिक्स ए है ना, देखें इफ द स्टेट मॉडल इज ऑब्टेन्ड यूजिंग द फेज वेरिएबल्स एंड द मैट्रिक्स ए इज इन द बुश फॉर्म और फेज फॉर्म सच एज दिस, इसकी बहुत सारे फॉर्म, कंट्रोलर कैनोनिकल फॉर्म, बुश फॉर्म, और ये नॉर्मल साइंस की किताब के अंदर 13वां 14वां चैप्टर होता है। ठीक है, अगेन अच्छा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है जी, एस की पावर एन प्लस ए वन एक्स पावर एन माइनस वन सो ऑन। तो ये जो अगर इस तरह से आपका एक मैट्रिक्स है, ये देखो वी मैट्रिक्स, अगर इस तरह से है वन लैम्डा वन स्क्वायर अप टू सो ऑन लैम्डा के पावर एन माइनस वन, ये लैम्डा वन लैम्डा टू क्या है? आइगन वैल्यूज है। वन लैम्डा टू स्क्वायर सो ऑन, अगेन इसका एक आगे रूल है, इस मैट्रिक्स से हमें कोई फायदा उठाना होता है, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? वेंडरमॉन्ट मैट्रिक्स। तो ये जस्ट अपने नॉलेज के लिए। Since a model matrix form A which is in the phase value form is called the Vandermonde matrix. अच्छा जी, consider a state model with the matrix A. अब आपके पास एक स्टेट मॉडल है, x डॉट इज इक्वल टू एक्स प्लस बी और y इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी। उसने सिर्फ आपको A मैट्रिक्स दिया है, क्या दिया है?
ए मैट्रिक्स आ गया आपके पास सिस्टम मैट्रिक्स। अब वो कह रहा है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें। कैसे निकालेंगे? एस आई माइनस ए करेंगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। फिर आप क्या निकालेंगे वहां से? आइगन वैल्यूज। ये बी पार्ट है, ठीक है। तीसरा आइगन वेक्टर, ये है कोफैक्टर मेथड। आपने भी किया होगा, आपने स्टेप बाय स्टेप करके वही एस आई माइनस ए में पहले लैम्डा 1 पुट करें, उससे एक वेक्टर निकाला लैम्डा, वो कन्वेंशनल मेथड है। यहाँ पे अभी मैं आपको एक और मेथड से कराऊंगा, कोफैक्टर मेथड्स, मुझे ये ज्यादा पसंद है, ठीक है। और फिर उसको अगर जितने भी आपने आइगन वेक्टर निकाले हैं उनको जोड़ दूं मैं, एक डब्बे में बंद कर दूं, एक मैट्रिक्स बना दूं, तो उससे क्या निकलेगा? एम। क्या निकलेगा? एम। मॉडल मैट्रिक्स, नाम पढ़ा पहले, मॉडल मैट्रिक्स। फिर उसका इनवर्स भी फाइंड करना है, सही है। फिर एम इनवर्स ए एम करोगे तो आंसर क्या आएगा? इसकी आइगन वैल्यूज डायगोनल के ऊपर आ जाएंगे, डायगोनलाइजेशन, ये कहानी है इसमें, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टम थ्योरी है वैसे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये इसलिए मैं थोड़ी सी आपकी रिवीजन करा रहा हूँ ताकि इसको हम ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में जब यूज करेंगे तो ये चीजें इस्तेमाल होंगी, तो तब आपको पता होनी चाहिए। इजी होगा, कोई इतना वो मुश्किल बात नहीं, लेकिन इसको पता होना चाहिए। पहले पिछला जो प्री रैक है लीनियर सिस्टम्स, वो जरा आपका फ्रेश हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। तो ये करें जरा इसको अब आप प्लीज जी। तो इसमें हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, मॉडल मैट्रिक्स और ट्रांसफॉर्मेशन। एम इनवर्स ए एम, इसके नतीजे में एक मैट्रिक्स ए आएगा जो डायगोनल होगा, सही है। तो ये देखें लैम्डा आई माइनस ए, ये आपने निकाल लिया होगा इसकी जो। अच्छा, अब ये ज़रा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें थर्ड ऑर्डर आपकी इक्वेशन बन गई है, 3 लैम्डा वैल्यूज हैं। तो इसका वो एक मैथमेटिक्स का कन्वेंशनल रूल होता है इसके, ठीक है। को सपोज कर लें आप, ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू -2 मैंने सपोज कर लिया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये सही सपोज करें, यानी हो ये मेथड है। उसके बाद इसकी कोफिशिएंट्स लिखने 1 9 26 24, साथ -2 है, 1 वैसे आ जाएगा, -2 से ज़रब आएगा, -2 7 आ गया, 7 इससे ज़रब खाएगा, -14 12 आ गया, 12 -2 से ज़रब खाएगा, -24 0 आ रहा है। 0 का मतलब क्या है कि दिस इज़ योर सोल्यूशन, ये आपका -2 रूट है। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 12, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई दूसरी, लैम्डा प्लस 2, लैम्डा माइनस इक्वल टू -2 का मतलब क्या है? लैम्डा प्लस 2। तो लैम्डा प्लस 2 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस 7 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। अब ये देखिए आपकी क्या बनती है? लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 4। तो ये 3 आपकी आइगन वैल्यूज आ गई, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये लैम्डा 1 आ गया, -2 -3 और -4। ये लैम्डा वैल्यूज क्या है? ये क्लोज लूप पोल्स हैं। मुझे देख के बताएं कि क्या सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। गिव योर verdict. It's stable because all are negative. Okay. These are the eigen. It is a stable system. Okay. अब आगे चलते हैं जी। अब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे, तो आप लैम्डा आई माइनस ए पहले जो वेक्टर था उसमें 1 by 1 आइगन वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं, या दूसरा ये मेथड भी कर सकते हैं कि लैम्डा आई माइनस ए इसमें पुट किया मैंने, और उसके बाद को फैक्टर निकाल लिया C11 C12 C13। C11 क्या होगा? -1 की पावर 1 + 1 इंटू क्या होगा? -2 -1 34 7 इसका डिटर्मिनेंट। इसी तरीके से C12 क्या होगा? C12 -1 की पावर 1 + 2 -4 48 -1 7 ये आ जाएगा। और C13 को फैक्टर निकाल के फिर आपने उसका C11 C12 C13 ये वाला बना लें या ये वाला बना लें, कोई भी बना सकते हैं। आमतौर पर हम ये वाला बनाते हैं, C11 C12 C13। ओके। तो ये आपका निकलता है 20 -20 -40। अब इसमें से 20 आप निकाल दें क्योंकि ये कॉमन है, इसको आप खत्म कर दें, कॉमन निकाल कैन बी टेकन आउट। ये आ जाएगा 1 -1 -2। तो ये अब आपका क्या है? आइगन वेक्टर। दिस इज योर आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वैल्यू, सही है। अब दूसरी पुट करें, लैम्डा -3 यहाँ पुट कर दें, उसके बाद जो मैट्रिक्स बन जाएगा लैम्डा आई माइनस ए, ये देगा ना, ये लैम्डा आई माइनस ए, ये वाला, ये लैम्डा आई माइनस ए किधर गया? ये है लैम्डा आई माइनस ए, लैम्डा आई माइनस ए इसमें पुट करें ना। पहले लैम्डा हमने वो पुट किया -2, अब -3 इसमें पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो आगे चले, आप M2 निकाल लिया, इसी तरीके से आपने M3 निकाल लिया। अब ये देखें इसमें 16 -24 8 आते हैं, 8 कॉमन है निकालने बाय 2 -3 1, और इसमें आता है 14 28 56, इसमें ये भी जाहिर है इसमें कॉमन फैक्टर है, 14 कॉमन, इसको निकाल दें 1 -2 4। अब ये आपके आइगन वेक्टर्स हैं M1 M2 M3, इन तीनों को जोड़ दें और एक मैट्रिक्स बनाएं, उससे क्या निकलेगा? कैपिटल M, ठीक है, मॉडल मैट्रिक्स। ये आपने वैसे किया था, किया होगा, ठीक है।
तो ये लेक्चर्स मेरे हैं, लेटर से भी हैं एडवांस कंट्रोल में, वो देख सकते हैं, ये अब मैं करवा भी रहा हूँ। तो m इज इक्वल टू 1 to 1। अब ये देखें, ये जो m मैट्रिक्स है ये कोई आम मैट्रिक्स नहीं है, ये मैट्रिक्स आइगन वेक्टर से मिलके बना हुआ है m। सही है। अब आपने क्या करना है, इसका इन्वर्स भी फाइंड करना है। सही है। इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, वही फार्मूला एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें और एडजॉइंट निकालें। एडजॉइंट वैसे निकालना है कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज लेके और नीचे m। तो ये सारा निकाल के आपके पास ये आंसर आ जाएगा m इनवर्स। अच्छा m इनवर्स निकालने पहले m इनवर्स, ये आपका m इनवर्स आ गया 1071 माइनस 8। अब ये आपने सही निकाला या नहीं निकाला, इसको m से ज़रब दे दें। अगर आंसर 100010001 आ रहा है तो वो सही निकाला। कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, आजकल जो एडवांस कैलकुलेटर्स हैं मेरे पास भी, उसमें सॉल्व हो जाते हैं। 3x3 का मैट्रिक्स उसमें सॉल्व हो जाता है, आप निकाल सकते हैं। प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओके। तो एम इनवर्स अब हम अप्लाई करने जा रहे हैं, एम इनवर्स ए एम करने जा रहे हैं। तो पहले ए एम करें, ए ज़रब एम, ये आंसर आ गया। फिर एम इनवर्स ए एम कर दें, एम इनवर्स ज़रब ये वाला जो आंसर आया था ये। तो आंसर देखें क्या आ गया, -2 0 0 0 -3 0 0 0 -4। क्या यही नहीं थी आइगन वैल्यूज, यही थी। तो किसने ये सॉल्व किया, आपने किया, हो गया। गुड गुड, नाइस नाइस। निकला ही थी नहीं, ये वाला निकाला ए, ये डायगोनल वाला, ये निकाले ना। हाँ, चले कोई नहीं, इसमें टाइम लगना था। तो अच्छा जी, ये λ1 0 0 ये आपने लेकिन घर जाके इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये है डायगोनल मैट्रिक्स और इसकी ब्यूटी क्या है कि ये इसमें सारी आइगन वैल्यूज आपकी डायगोनल में आ रही हैं, एज कुछ हम सीधे करके हैं। तो अच्छा जी, उसके बाद ऑब्टेन द आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स एंड मॉडल मैट्रिक्स फॉर द मैट्रिक्स। अब बिल्कुल इसके भी आप इस तरह निकाल सकती हैं, ए निकालें, लैम्डा आई माइनस ए का डिटरमिनेंट 0 रखें, आइगन वैल्यूज निकालें। फिर उन आइगन वैल्यूज के बाद आप उनके आइगन वेक्टर्स निकालें। आइगन वेक्टर्स निकालने के बाद उसका एक मॉडल मैट्रिक्स बनाएं, फिर उसका इन्वर्स फाइंड करें, फिर एम इन्वर्स ए एम करें तो डायगोनलाइजेशन हो जाएगी। कहानी क्लियर होगी। ये है सारी फिल्म। ओके। अच्छा जी, तो लेमडा आई माइनस ए, ये तो बड़ा आसान है, इसके 3 रूट सीधे सीधे निकल आते हैं, कैलकुलेटर से निकाल लें हम। लेमडा प्लस 1, अब देखें ना इसमें रेपिटेशन नहीं है, नेक्स्ट लेवल आता है इनमें रेपिटेशन आनी शुरू हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि हम हमारे पास जो एम आता है ना उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। वो थोड़ा आगे चला जाएगा वहाँ, क्योंकि हमारा अगर ज़रूरत होगी किसी ऑप्टिमल प्रॉब्लम में तो मैं वो करवा दूंगा, नहीं तो बस ऐसे ही चलेंगे हमारे। ठीक है, लैम्डा प्लस 1 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से आइगन वैल्यूज की आ गई -1 -2 -3। अगेन ये सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल है, बिकॉज ऑल आर नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यूज, राइट। गुड। तो इसमें पहले लैम्डा -1 पे निकाल लें आइगन वेक्टर। अगेन ये निकाल लिया अपना C11 C12 C13, M1 निकाल लिया, M2 निकाल लें, फिर M3 निकाल लें और फिर इन तीनों को ज्वाइन कर दें। तो ये आपका मॉडल मैट्रिक्स बन जाएगा 1 1 1 -1 -2 -3 1 4 9। और अब आप करें इसको एम इनवर्स से एम करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी आपकी, ये वाली -1 0 0 0 -2 0 0 0 -3। ठीक है। तो ये था आज तक के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।